Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss second part of poverty in India. We already discussed meaning of poverty and which type of instrument to use measuring the poverty and causes of poverty. Today we will discuss how government elevation poverty in India and which type of program set up by the government to remove the poverty and rise the standard of living of the poor sections. Let's start. Measures to remove poverty. It means after independence, government need a plan to remove poverty. So we use 5-year planning and industrial policies. In 1991, we changed the industrial policy and 5-year planning. Now we are using Niti Aayog. All these schemes and planning of the government to remove poverty. But few target we are achieved and mostly are failed due to not implementation of the programs in honest manners. Let us start programs which is necessity to remove the poverty. First up, high growth rate. High growth rate is first and essential requirement of a country to remove poverty. Because we are going in the stage of jobless growth, हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसे अवॉइड करना पड़ेगा. जॉबलेस ग्रोथ नीड टू अवॉइड. देन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ इज अल्टीमेटली सोल्यूशन टू रिमूव द पॉवर्टी. इट्स मीन्स कि सबसे पहले तो हमें ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग इंक्रीज वेरी फास्ट कंपेयर टू दी अदर कंट्रीज. तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट होगा करना पड़ेगा ताकि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ऑफ द पीपल्स वो राइज हो सके. सेकंड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. वी ऑलरेडी नो अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड्स. वी आर एग्रीकल्चर कंट्री and without the agriculture development we cannot remove poverty, because mostly unorganized sectors are considered in agriculture areas. Peoples directly indirectly depend on agriculture areas, but agriculture development is less than 3%. Need to change it. We need to change cooperative and joint agriculture productions to increase per person productivity and per hectare productivity. Then we can remove the poverty. Otherwise, no any policy success in India. Agriculture development is the backbone of the Indian economy. So without the growth of agriculture sector, is it not possible. Here need of financial assistance. मीन यहाँ पर फाइनेंशियल की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है. उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कमर्शियल बैंकों की ज़रूरत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ज़रूरत है जो हमारे फार्मर्स को लेस रेट पर लोन प्रोवाइड करा सके. बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ट्राई टू प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट political system of India is not very good. Due to the political interference, farmers not paid their debt. So all the institutions failed. Need to aware the farmer for competition. Then agriculture development compete with international level. Then we can achieve our target. रिड्यूसन इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है. टू रिमूव पॉवर्टी नीड टू रिड्यूस गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पर्सन. प्रॉब्लम यहाँ क्या है, गवर्नमेंट आर सेट अप 1000 स्कीम्स इन एवरी स्टेट्स टू रिमूव द पॉवर्टी, टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर सेक्शन, बट
not succeed. Why not succeed? Why not succeed? Because implementation and corruption is main reason to failure of this task. Not only political leaders are corrupt, officer corrupt. Only 5 to 10% of the subsidy reach to the real person. All other subsidies work in the hand of rich sections is a main problems. तो हमें क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. Control of population. If we talk about the population growth of India, it is greater than production level. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैमिली प्लानिंग की तरफ सोचना होगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के प्रति क्या लोगों को अवेयर करना होगा, ताकि नॉट बाय फोर्स, बाय वॉलंटरी दे रिड्यूस दी फैमिली मेंबर्स, रिड्यूस दी पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ए कंट्री. इसके लिए हमें क्या करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा कि स्मॉल फैमिली मीन्स प्रॉस्पेरिटी, लार्ज फैमिली मतलब डिफ़िकल्टीज. बिकॉज सोर्सेज कम है हमारे पास और बट नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली ज़्यादा है, तो वी कैन नॉट प्रोवाइड गुड एजुकेशन लेवल, हेल्थ लेवल. देन ग्रो ऑफ चाइल्ड create a problem for families. They are going to wrong side. So need to control the population. Control on price rising. देखो इन्फ्लेशन डे बाय डे राइज. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी इम्प्लीमेंट करवाया ये कहकर कि हर चीज़ के प्राइस कम हो जाएंगे, और यही प्रॉमिस करके वो कांग्रेस को हराया गया और बीजेपी को लाया गया. बट अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन को कमज़ोर करने में बीजेपी भी टोटली फेल रही है. क्यों रही है? क्योंकि उनकी भी पॉलिसियाँ सिर्फ कुछ लोगों के बेनिफिशियल के लिए ही हैं. लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आर अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट फैसिलिटीज़. गवर्नमेंट आर फेल टू कंट्रोल अननेसेसरी होर्डिंग, जिस कारण से क्या है, प्राइस डे बाय डे राइज हो रहे हैं. पुअर फैमिली आर फेल टू अफोर्ड द प्राइस, जिस कारण से प्रॉब्लम है. हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बैकवर्ड रीजन. कुछ स्टेट हमारे रिच हैं, उनका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. कुछ स्टेट्स क्या बहुत ज़्यादा पुअर हैं. पुअर स्टेट्स के अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट करप्शन के कारण उन सोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कुछ लोगों के हाथ में है, जिस कारण से बैकवर्ड स्टेट्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही है. उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है. सोर्सेज को एक रैशनल मैनर से डिवाइड करने की ज़रूरत है, जिस कारण से क्या है, बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है. हमें वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम सेटअप करने पड़ेंगे. लोगों के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम इस लेवल को चूज़ कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बेसिक प्रॉब्लम है इंडिया की. 65 साल बीत जाने के बाद भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है. किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से. लोग टैक्स पे कर रहे हैं बट टैक्स का मिसयूज़ हो रहा है. एमसी एमएलए है, एमपी है, फुल फ्लैश मनी का मिसयूज़ करते हैं, जिस कारण से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है. हम सोचते हैं यूएसए बन जाएंगे, ठीक है, सोचकर वहाँ खर्च कर आते हैं 1000 करोड़ रुपीज़, आके फिर वैसे ही हो जाते हैं, जिस कारण से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे का जो है मिसयूज़ हो रहा है. हमारे ट्रांसपोर्ट बेकार है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेकार है, जिस कारण से एक इनोवेशन की कमी रहती है इंडिया के अंदर. उसको दूर करेगा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमें क्या करना होगा, चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, रिड्यूस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडर and political parties if we want to strong our infrastructure of a country. People's aware to pay tax only when government granted it, not misuse of the
tax money. Otherwise, nobody are ready to pay tax to the government. तो हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, करप्शन को ख़त्म करके. प्रोग्राम एलिवेशन प्रोग्राम, बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम सेटअप किए ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके. उसको कुछ प्रोग्राम मैंने यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ और भी हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप मैनी स्कीम्स टू रिमूव द पॉवर्टी. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस वाज द फर्स्ट comprehensive self employed program introduced in India. It was launched in 1978-79 for rural poor. यानी कि जो रूरल पुअर्स हैं उनके अंदर पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल लेवल पर ये स्कीम को लॉन्च किया गया. उसके बाद 6 स्कीम को इसके अंदर क्या है मर्ज कर दिया गया. फिर उसके बाद गया ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सेटअप इन 1997 टू इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन अर्बन एरियाज. स्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सेटअप इन 2001 टू स्ट्रॉन्ग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जनरल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर उसके बाद क्या सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड फेमस स्कीम इन इंडिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सेटअप इन 2005 टू प्रोवाइड granted 100-day employment to rural unskilled labor. This type of schemes set up by the India to remove the poverty and increase the living standard of the poor sections. Provision of minimum basic needs, एक निगर स्टेप हमने उठाया ताकि मिनिमम वेजेस को प्रोवाइड कराया जाए. इसके लिए हमने क्या किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया. अंडर द PDS essential commodity like wheat, rice, edible oil are available to the poor families at reasonable rate. Midday meal started by the government for children who belong to the poor sections in government institutions, ताकि उनका जो न्यूट्रिशन है उसको क्या है पूरा किया जा सके. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास्ड इन 2013. गवर्नमेंट प्रोवाइड 3R यानी कि 3 rupees per kg rice and 2 rupees per kg wheat provide to poor families. Then प्रधानमंत्री जन धन योजना सेटअप इन 2004 to encourage small saving, क्योंकि स्मॉल सेविंग एक लार्ज ऑप्शन हो सकता है इंडिया के लिए अगर पुअर सेक्शन भी अपनी स्मॉल सेविंग को बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए, जिससे क्या होगा पीपल ऑफ पुअर कंट्री आल्सो कंट्रीब्यूट इन आवर GDP आल्सो. अचीवमेंट क्या होगी, अब हमारे पास क्या अचीवमेंट होगी. पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो हमने अचीवमेंट लिया बट अचीवमेंट्स लेस हैं एंड फेलियर ज़्यादा है. पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन डिक्रीज हुई है. पॉवर्टी लाइन हैव डिक्रीज फ्रॉम 54.9 टू 1.9. पहले क्या इतने लोग परसेंटेज क्या थे पुअर थे, आज क्या है परसेंटेज को हमने क्या है पछाड़ा है लेकिन नंबर को नहीं पछाड़ा. देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन वेज रेट इन ऑल एरियाज. हमारे वेज रेट बढ़े हैं, गवर्नमेंट इसे रिवाइज करती रहती है ताकि वो मिनिमम गुड्स को अफोर्ड कर सकें अपने जीवन को स्मूथली रन करने के लिए. न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल्स इवन पुअरेस्ट हैज़ इंक्रीज हुआ है. गवर्नमेंट मैनी स्कीम के द्वारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंक्रीज हुआ है आफ्टर लॉन्च मैनी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. बट इतना पॉसिबल नहीं हुआ कि हम फेलियर को भूल जाएं. फेलियर्स ज़्यादा हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं कम है. फेलियर्स क्या है, जितनी भी हमने स्कीमें बनाई हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई एफिशिएंट तरीके से. बहुत ज़्यादा करप्शन रही है. program could not be implemented efficiently due to the interference of political parties and corrupt officer in India. They are using program money in their own use. Benefit of the government schemes goes into few hands. Only rich sections take a benefit of the government funds. Poor sections are not aware about it and they are illiterate also. So we can say that misuse of money of the funds by the personal use of the leaders. We reduce poverty in percentage not in number. हमने परसेंटेज को रिड्यूस किया, नंबर को रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि आज भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.76
परसेंट है, और जो हमारी प्रोडक्शन ग्रोथ है ओनली क्या है 2 और 3% है, जिस कारण से क्या है इतनी बड़ी लार्ज सेक्शंस को फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। हमें बहुत सारे तरीक़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ पुअर फैमिली कुड नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, नॉलेज ही नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट ने कभी ध्यान दिया इनकी तरफ, सिर्फ रिच सेक्शंस की तरफ ही ध्यान दिया जाता है ज़्यादातर तो, और वही इस पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं। ड्यू टू मोर करप्शन ओनली रिच सेक्शन corrupt officer and leaders took benefit, no benefit for the poor sections। तो मीन्स ये हमारी बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। लुक आउट द न्यू स्कीम्स। फर्स्ट सब तो हमें क्या होगा, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी को रिड्यूस करना होगा गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर, तभी बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।